Students, in the last class we are discussing about reaction of metal with oxygen. So we have discussed about that iron can be form iron oxide by reaction with oxygen and water, and copper can form copper hydroxide and copper carbonate in presence of water, carbon dioxide and oxygen. So these things we have discussed in last class. Today we will discuss about metallic oxides. So metallic oxides maybe these are acidic or basic in nature, but they are sometimes metallic oxide are behaving like amphoteric. Amphoteric oxides are oxide which are behaving like acid as well as basic. So aluminium can form oxide which is known as aluminium oxides, as shown in this picture, that 4 aluminium plus 3 O2 will give you 2Al2O3 aluminium oxide, and shows both acid as well as basic action. Such metal oxide which can act as both acid as well as base to produce salt and water is known as amphoteric oxides. Like say for example, aluminium oxide can react with HCl to give you aluminium chloride plus water. Aluminium oxide can react with base to give you sodium aluminate plus water. So metallic oxides are basically amphoteric, being basic in nature. Exception means कि metallic oxide can act as acid as well, but basic in some time. Okay, but some oxide which can act acid as well as base is known as amphoteric oxides, as shown in this equation. So these chemical reactions. So metallic oxide are generally insoluble in water, but some of metallic oxide like sodium hydroxide and potassium hydroxide, sodium oxides and potassium oxides dissolve to produce alkalis. So what is the difference between base and alkali? Bases are the substances which are giving OH ion, but alkalis are the substances or the bases which are water soluble. वाटर सोल्यूबल बेसिस जो है वो एल्कली होते हैं. सो एल्कली क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं. सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके Na2O सो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है. ऐसे ही पोटाशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड देता है. At normal temperature, the surface of metal such as magnesium, aluminium, zinc, lead develop a coating of thin layer of oxide. The protective oxide layer prevent the metal from further oxidation. Sometimes there are some metal which are even though protected by these oxides layer, उन पे और किसी केमिकल रिएक्शन का असर नहीं होता है. जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. Aluminium oxide is a self-coating process in which aluminium oxide cannot form a coating which cannot let the aluminium oxide or further aluminium to react with any other chemical. So there are few metal like magnesium, aluminium, zinc and lead. These form a thin layer of oxide which is protective layer and which cannot let the metal further oxidation. Okay, magnesium burn in air to form magnesium oxide. Mg plus O2 will give you magnesium oxides. Okay, next is iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when scattered in flames. Iron fillings, iron itself हीट नहीं होता, लेकिन iron fillings क्या होते हैं भाई? आयरन को छोटे छोटे पार्ट में बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में अगर हम जलाते हैं, then it can form, it can scattered, मतलब it can burn in the flames. Copper does not burn on heating, but hot metal develops a coating of black colored copper oxide. ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है that copper plus oxygen will give you 2CuO. copper वैसे बर्न नहीं होता, बट hot metal एक कोटिंग बनाता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड. सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर. सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं भाई. सिल्वर और गोल्ड अनरिएक्टिव मेटल्स रहेंगे इवन दो एट वेरी हाई टेम्परेचर विद ऑक्सीजन. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. सोडियम बीइंग रिएक्टिव रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर. मैंने बताया था आपको दैट सोडियम इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल. सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके वो बर्न हो जाता है भाई. इवन दो मेटल आर हाईली रिएक्टिव दैट दे कैन रिएक्ट विद वाटर आल्सो.
leading to the production of sodium hydroxide and hydrogen. इसीलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है. अगर आप इसको वाटर में स्टोर करोगे तो वाटर में तो ऐसी आग लग जाएगी. इसीलिए सोडियम इज वेरी रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव, एंड दिस कैन विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2. इसीलिए जो सोडियम है उसे केरोसिन ऑयल में पुट किया जाता है, केरोसिन में रखा जाता है. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता भाई, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2. ओके, next is a reaction of metal with water. So calcium with water evolves heat that is not sufficient to produce or to hydrogen to catch fire. Even though calcium जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ to give you calcium hydroxide plus H2, but it produces heat, लेकिन उससे आग नहीं लगती है जैसा सोडियम के केस में होता है. whereas metal like aluminium, iron, zinc react neither with cold nor with hot water. Instead they react with the steam मतलब they react with heated water to vaporize water. ठीक है, तो there are few metal like aluminium, iron and zinc, they can react with steam to form iron oxide, and iron can form iron plus 2 and plus 3 2 oxidation state. Okay, metal including lead, copper, silver, gold do not react with water at all. lead, copper, silver, gold water के साथ react नहीं करते हैं. Next is reaction of metal with acids. So metal basically acids के साथ react करेंगे तो हमेशा salt plus hydrogen gas produce करेंगे. Metal react with acids to produce HCl gas. Hydrogen gas. If a matchstick is brought near the mouth of tube containing the product of reaction, then we hear a pop sound. It is due to hydrogen gas that burn with a pop sound. अगर आप कोई असेंबली बनाते हैं और उस असेंबली में आपके पास एक अपने बीकर लिया, उस बीकर में आपके पास HCl है और उस HCl में आपने मेटल को डाला और यहाँ पे आपने इन्वर्टेड फनल डाला हुआ है और यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर रहे हो और उसके साथ आपने कोई बर्नर या फिर किसी ऐसी चीज़ को लेके आए हो जो ईजिली बर्न हो सकती है. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आप मैच स्टिक को भी लेके आते हो, तो हाइड्रोजन गैस के निकलने की वजह से जो मैच स्टिक है वो बर्न हो जाती है विद पॉप साउंड. दैट मीन्स जब भी कभी मेटल जो है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू फॉर्म क्लोराइड और सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिससे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HCl के साथ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट इज कॉपर itself does not react with HCl, but it can react with H2SO4. Even though copper can react with H2SO4, copper oxide is react with H2SO4 because copper after some time can form copper oxide. So copper sulfate plus H2O will form. Hydrogen gas is not evolved when metal react with nitric acid. This is because that HNO3 is a strong oxidizing agent. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी मेटल के साथ. देर आर फ्यू एसिड्स जैसे HNO3 है, ये इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है. ठीक है, इसकी वजह से मेटल जो है जिस टाइम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो H2 गैस इवोल्व नहीं करता, H2 गैस नहीं निकलती, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती. It oxidizes the H2 produced to water and get reduced to nitric oxide, nitrous oxide और nitrogen dioxide. ये तीन ऑक्साइड्स है भाई जो नाइट्रोजन बना सकता है. खुद तो H2 को वाटर में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और उसका खुद का रिडक्शन हो जाता है. बट मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3. बट मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को इवोल्व करता है. ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज. एक मेटल जो है भाई वो दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है और डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. ये आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी
जिसमें एक हायर रिएक्टिव मेटल एक लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपनी पोजीशन से. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, बट a less reactive metal cannot displace a more reactive metal. ओके, इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये दिखाया गया है दैट पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड कॉपर. ओके, नेक्स्ट इज हाउ कैन वी से दैट रिएक्शन जो हम करा रहे हैं, दैट रिएक्शन वी आर टॉकिंग ऑफ, कि आप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो वी कैन डू इट विद द एक्टिविटी. आप 5 बीकर्स लीजिए, उन सारे बीकर्स में आपने क्या डालना है, बेकर ए में जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. अब आपने क्या करा, उसमें कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डाल दिया, तो कॉपर सल्फेट में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है. बीकर बी में आपने कॉपर सल्फेट प्लस आयरन डाला है. एज आयरन कैन फॉर्म आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. ठीक है भाई, बीकर सी में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि जिंक सल्फेट और कॉपर जो है भाई, इसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी. अब बीकर डी में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर में. ठीक है, इन बीकर ई भी कोई रिएक्शन नहीं होगी. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिस पर्टिकुलर मेटल को आप डाल रहे हो वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जो साल्ट में मेटल प्रेजेंट है. अगर वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा तो उस मेटल को जो ज़्यादा कम रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नोन मेटल्स. अब मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वे इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी होती है. जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को देके सोडियम आयन बना लेता है Na पॉजिटिव, कैटायन जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. और जो आपके पास नॉन मेटल है उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, जैसे Cl नेगेटिव हो गया अभी. सोडियम का एटॉमिक नंबर जो वो 11 होता है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 281 है. अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है. सो एटॉमिक नंबर 10 के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम. ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्लोरीन में 17 क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 287 होती है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है. तो वैलेंसी क्लोरीन की कितनी हो जाती है 1, और सोडियम की भी कितनी हो जाती है 1. सो आप जिस टाइम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है दैट सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम बिंग कैटायन रिलीजेस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड द अनायन रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तब आपके पास सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होती है. ओके, तो ये जो आपके पास सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और नॉन मेटल क्या कहते हैं, मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है इसीलिए वो कैटायन फॉर्मेशन कर लेते हैं. नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके वो अनायन फॉर्मेशन कर लेते हैं. और कैटायन और अनायन एक दूसरे के साथ मिलके वो जो है एक प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड्स. Metal and non-metal leading to the formation of compound that possesses charged species. अब जो अभी हमने डिस्कस करा सोडियम क्लोराइड, दैट इज आयनिक स्पीसीज. सो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल जो है भाई वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स को जिनके पास चार्ज स्पीसीज है. दीज चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड एज आयंस. दीज अपोजिटली चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस इंक्लूड or hold together with the bonds which is formed as ionic compounds. These charged species can either positively charge cation or negatively charge anion. In example, sodium chloride. Sodium can exist as sodium ion, and chloride can exist as Cl negative. Chlorine can exist as Cl negative. Hence, it is an ionic compound.
आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं भाई। सोडियम क्लोराइड आप लोगों ने देखा होगा, घरों में जो नमक यूज करते हैं वो सॉलिड है। हार्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। These compounds are generally brittle and break into pieces on application of pressure. Ionic compounds at high melting and boiling point, because the application of significant amount of energy can break the strong inter-atomic attractions. अब इंटर आयनिक अट्रैक्शंस, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर होते हैं बट इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। अगर आप नमक को पानी में घोलते हो तो इजीली सोल्यूबल हो जाता है अभी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इज पॉसिबल व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब आप एक चीज़ कीजिए, सॉलिड NaCl लीजिए, एक NaCl इन वाटर लीजिए, तो सॉलिड NaCl को कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, बट NaCl इन वाटर कंडक्ट करेगा। क्योंकि वो जो मूवमेंट है चार्ज पार्टिकल की वो उसी टाइम पॉसिबल है जिस टाइम आप सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर। A solution of ionic compound in water contains ions which moves to the opposite electrode when electricity is passed through the solution. अगर आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं आयनिक सॉल्यूशन में, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो अनायन है वो जाएगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ वो जो कटायन है वो जाएगा जिस टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मोल्टन मतलब आपने पानी नहीं डाला, उसे हीट कर दिया, हीट करने के बाद वो मेल्ट हो गया, ठीक है। अगर आयंस फ्री टू मूव है तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है तो नहीं करेगा। ओके, दिस इज इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।